Jai Jagannath, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Electronics and Information Technology and Parliamentary Affairs, Dr. Mukesh Mahaling Mahasay, Chief Secretary Sri Manoj Ahuja, Additional Secretary and CEO ISM, Government of India, Sri Amitesh Sinha, Principal Secretary Electronics and IT and Energy, Sri Vishal Dev, MD OCAC, and Special Secretary Electronics and IT, Sri Manas Panda, Managing Director, Archean Chemical Industry Limited, Sri Ranjit Tendurathi, Managing Director, Pixem Private Limited, Sri Guru Alapaneni, Director IIT Bhubaneswar, Sri Sripad Karmalkar, Theo Classic Wafer Fab Limited, Ms. Jennifer Walls, senior officials of government, distinguished leaders from the global semiconductor industry, members of academia, investors, innovators, ladies and gentlemen. Today, as we gather at the Bhumi Pujan of Pixem Private Limited's compound semiconductor manufacturing facility in Info Valley, Bhubaneswar, to stand at the start of a new journey for Odisha and for our nation. This moment is not just about bricks and mortar. It is about aspirations, resilience, and a future crafted through collaboration, innovation, and self-reliance. Odisha has always believed in the power of modern industry to unlock opportunity for every Kisan, every worker, every student, and every family. The Bhumi Pujan today mark a significant milestone in our path toward Atmanirbhar Bharat. As we foster a robust ecosystem for semiconductors embedded at the heart of India's digital and manufacturing revolution. Pixem's investment reinforces Purbodaya's vision, bringing resources, talent, and technology to accelerate India's growth story in the global semiconductor supply chain. I would like to say that due to an urgent and important meeting with the Honorable Prime Minister of India, Sri Ashwini Vaishnav, our esteemed Railway Minister, could not join us today. We deeply appreciate his dedication and commitment to national priorities, which demands his immediate attention at this time. His inspirational video message means a lot to us. I would also like to thank Union Minister Sri Vaishnav for supporting Odisha in every possible way and providing the kinetic energy Odisha needs to fulfill its dreams. I would also like to thank Mr. Ranjit Tendurathi and Mr. Guru Alapaneni for the trust and confidence reposed in Odisha. This partnership marks a new chapter in Purvodaya and accelerates the growth story of India in semiconductor. It reflects
the deep collaboration between the government of India, the government of Odisha and industry leaders who are shaping the technologies of tomorrow. आज बड़ सौभाग्य कथा आम समस्त ओडावासी मु अनेक समय राजनीति आसला एवं ये ओडिशार जनसाधारण सेवा करिबार जो सुजोग जितेबले मु पाइली एवं परवर्ती पर्याय ओडिशा राजनीति रे ओडिशार विकास भूमिका आमर भूमिका समस्त कथा को देखला परे अनेक विषय भारत वर्ष विश्व एवं आम ओडिशा रे मध्य चर्चा है एवं चर्चा भितर प्राकृतिक संपद भरा आम ओडिशा जोठी मिनराल रिसोर्स अच्छी जोठी बहु संख्यार नदी अच्छी एवं प्रचुर पानी अच्छी जोठी आज दिन में 575 किलोमीटर कोस्ट लाइन अच्छी जोठी जंगल अच्छी जोठी जमी अच्छी आ जोठी बहुत बड़ गोटे आमर आज स्किल सेक्टर में आमर अनेक युवक युवती माने एठी दक्षता प्रदर्शन करिबार दक्षता रखती जहाँकि आम बहुत बड़ आज आम ओडिशा रे मैन पावर अच्छे ये समस्त कथा को देखला पर अनेक समय प्रश्न आसे एते थाई प्राचुर्यता भितर आम ओडिशा प्रकृत में एठी कहीं दारिद्रता ये प्राचुर्यता भितर दारिद्रता ये शब्द शुणला अनेक समय बहुत प्रतिक्रिया मो मन में सृष्टि होता केवल मु नुहे आपण मैंने भी अनेक जो मैंने आज ओडिशा चिंता करम ओडिया युवक युवती मानकर चिंता करम ओडिया समाज में आम चिंता कर ये निश्चित भाव महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आमको तो देवारे भित्तिभूमि देवारे संपत्ति देवारे कमी करना किंतु आम कहीं आज दारिद्रता भितर अच्छु ये प्रश्नर उत्तर बहु समय विधानसभा भितर विधानसभा बाहर आम बहुत खोजी आपण मैंने भी समस्ते निज निज क्षेत्र में थी बहुत स्टेटमेंट देते चर्चा करेंगे आम कहीं पचर अच्छे आज अनेक समय चर्चा हुए राजनैतिक ये इच्छाशक्तिर अभाव आ इच्छाशक्तिर अभाव थे ये सब काम हो पारे ना यदि इच्छाशक्ति अच्छी ताहले आपंकर प्रतिबंधक कहीं गले भी अटकई पारे ना अर्थ नथिले मध्य आपण प्रोजेक्ट को करइबारे ये अटकीब ना अर्थात इच्छाशक्ति अच्छी आ से इच्छाशक्ति बल आम आग को जापर आज मत लगुच विगत दिन में अनेक समय केते मेक इन ओडिशा कनक्लेव कथा ओडिशा रे आसी गत सरकार मानक किए कहते हजार दिन में हजार शिल्पर कथा आउ किए भी कहते आम मेक इन ओडिशा कनक्लेव संस्करण 1 संस्करण 2 आउ संस्करण कर व्यस्त थे एमओयू होता स्टील प्लांट हाँपाई अन्य प्रोजेक्ट हाँपाई 69 शिल्पर एमओयू करते किंतु गला कुआड़े जदि यही मु आमर ये खोर्धार समस्त बुद्धिजीवी समस्त भाई मान को प्रश्न पचारि उत्तर हुए तो ये जो मैंने मोर खोर्धार भाई मैंने आप उत्तर देपारे समय बड़ बलवान आज आपण मैंने समस्ते सरकार परिवर्तन कर इच्छाशक्ति को बढ़ावाई प्राकृतिक संपत्तिर भरपूर प्रयोग करने से समय आज आम सामने आसिकी पहुँची कारण निश्चित भाव में आज जिते माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम पाखे
आसी नवेदन करते ओडावासी को आपण मत डबल इंजिन सरकार दिंतु मुझे डबल विकास कम करेगी। आज आप देखु मात्र 16 मासर आम सरकार लोकंर सरकार आसला पर आप स्थिति देखु केते परिवर्तन होबार आज लगी। सेमी कंडक्टर ये प्रोजेक्ट ये छोट कथा नुह। आज ये 2000 कोटी ऊर्ध टंकार निवेश होगापी जाऊँगी। ये 2000 कोटी टंका बहुत बड़ कथा नुह कि 2000 कोटी टंकार सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट होगापी जाऊँगी सेटा केवल आम ओडिशा नुह भारत वर्ष गोटे ऐतिहासिक मुहूर्त बहुत बड़ गोटे बहुत गोटे बड़ आज जो आम फेविकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम जितेबाला होता नुआ दिल्ली में गत किसी दिन पूर्व 45 देश सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट रो कंपानी सीईओ और चेयरमैन माने आसी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्य आतिथ्य हिसाब से आतिथ्य नहीं मुख्य अतिथि हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने इंडिया समस्त को ये निवेदन करते आमको सुजोग मिलता ओडिशा को मुख्यमंत्री हिसाब से भारत वर्षर एकमात्र मुख्यमंत्री हिसाब से मत माननीय प्रधानमंत्री जावाई स्वतंत्र भाव में निमंत्रित करते मो सहित आमर आईटी मिनिस्टर डॉक्टर मुकेश महाली से जाते 20टी कंपानी सहित आम रोड शो कलु 1 to 1 किसी दिन पूर्व डॉक्टर मुकेश महाली ये कहते आपरे केंद्र सरकार सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट को आगे देवाई भारत वर्ष में अनेक कार्यक्रम आरंभ करुँच गुजरात में आरंभ होता आज आसाम ओडिशा आम अच्छा गत कैबिनेट मीटिंग रे सेमिकन इंडिया 2025 बिफोर जिते कैबिनेट मीटिंग बसला नुआ दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा 4टी सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रुवाल देते कैबिनेट पास करते बड़ सौभाग्यर कथा आ बड़ सौभाग्य प्राप्त आमको होता ओडिशा को 4टी केवल 2टी आम ओडिशा को से देले आम ओडिशा को से देले भितर गोटे आज आम पाखे से चिप्स करेंगे पैकेजिंग करेंगे आज ये आम ये व्यवस्था कर बहुत कम समय भितर 2-3 मास भीतर ये व्यवस्था करवा ये छोट कथा नुह आम आज सफल रूपायन करने जाऊँगी। एणु मुझे आगुरी कही लोकंर सरकार आम सरकार ये कथार नुह काम विश्वास करते आम कही आज 3 मास भीतर आम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जाऊँगी। आज आम सामने ये प्रोजेक्ट ये आज चिप्स आम सामने छिड़ा कालीटा आम तार इनाग्रेसन करवा किसी दिन पर ये समय आज उपनीत अच्छे जो 2टी बाकी रहा कैबिनेट अप्रुवाल अलग अलग राज्य को गोटे गोटे करके आमको 2टी दे 20टी कंपानी भितर से दिन आलोचना भितर रोड शो 3टी कंपानी सहित MOU साइन है 3टी कंपानी से दिन आलोचना भितर एवं ये किसी दिन पूर्व HLCA हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी पाखे जार चेयरमैन अध्यक्ष मुझे आम गोटे प्रोजेक्ट को से अप्रुवाल कर 2टी प्रोजेक्ट बर्तमान तार प्रोसेस रे अच्छी ये 2टी आ 3टी 5टी सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट आम हाथ में ओडिशा आज गुजरात पर द्वितीय स्थान हासिल करने जाऊँगी ये सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट निर्माण करें जोटा कि आपंकर आमर जो संभावना अच्छी आम मैन पावर अच्छी आमर स्किल अच्छी ये टेक्नोलोजी आम ओडिशा रे जो इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी राउरकेलार से नीट कहतु आप MKCG कॉलेज पार्लाखेमुंडी जो इंजीनियर माने निजे चिप्स बनईकरी
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ଯଶୋଭୂମିରେ माननीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को हस्तांतर करले जे आम ओडार सेमिकंडक्टर चिप्स बनईचु लैबोरेटरी बनईचु से प्रधानमंत्री मोदी बहुत आनंदित और खुशी होते आम पाखे से कला अच्छे टेक्नोलोजी अच्छी आम केवल एक्सप्लोर करने कथा तो जहाँ भी हो ये एक सुजोग आमको आज आम हाथ पाहांतारे पहुँची पारी से आम सरकार आसला मेक इन ओडिशा उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव 2025 परिप्रेक्षी में आज आम केवल शिल्प प्रतिष्ठा करने केवल स्टील प्लांट करने नुह 16टी सेक्टर में आम 13 लाख कोटी टंकार एमओयू साइन कर हाई अथॉरिटी क्लियरेंस रे आम 5,64,000 कोटी टंकार प्रोजेक्ट को अप्रूवाल कर जो 1,64,000 आमर शिक्षित युवक युवती मैंने जो भाई भौणी मैंने अच्छा ये ओडिशा बड़ बड़ प्रोजेक्ट चाकरी करेंगे जॉब करेंगे ये सुजोग हाथ पाते सुनिश्चित निश्चित भाव में आपण मैंने खुशी होगा दरकार आ ये सुनिश्चित आम सरकार करेंगे आम कहूलु आज है ग्राउंड मेकिंग 2 लाख कोटी टकर हो सारी एवं से आम पाखापाखि 40,000 युवक युवती को आम नियुक्ति देवे आज सक्षम हो केवल ये इंडस्ट्री सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में आम 30,000 युवक युवती मान चाकरी दे सारी आगामी दिन में आम 45,000 को आम पहुँचू ये संभव केवल जे सरकार ये संभव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा प्रति जो भल भावना अच्छी ओडिशा को भल पाइबा आ ओडिशा एक संभावना राज्य हिसाब से जो भाव में से देखुं केवल विकास कर परिकल्पना कर आम हाथ पाहांतारे गत किसी दिन पूर्व ओडिशा आसी माननीय मोदी जी झारसुगुड़ार मैदान में जिते बेले ओडिशा को आम सरकार 7म थर पर आसिले 7 थर आसिले ओडिशा को आसिला से दिन जो 70,000 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करले आप आश्चर्य हे 70,000 कोटी रु आम ओडिशार भाग हूँ 50,000 कोटी टंका आम ओडिशा को देले 50,000 कोटी टंका से आपंकर गंजाम जिलार बाहुड़ा पोर्ट डेवलपमेंट काम करने सहित केन्द्रापड़ार महानदी मुहाण सीप बिल्डिंग करने जहाज निर्माण करने 25,000 कोटी टंकार प्रोजेक्ट आम हाथ में देले जिते बड़े भुवनेश्वर को आसती जिते बड़े ओडिशा को आसती माननीय प्रधानमंत्री जी केते बड़े खाली हाथ आसती ना केते बड़े आपंकर पेट्रोलियम प्रोजेक्ट को लेकर आसवा केते बड़े पोर्ट को लेकर आसवा केते बड़े रेल प्रोजेक्ट को लेकर आसवा आउ केते बड़े तो इंडस्ट्री को लेकर आसवा आज आम सफल होगापी जाऊँ तेणु निश्चित भाव में मुझे समस्त को धन्यवाद देवी आज आम गोटे शुभ मुहूर्त ऐतिहासिक मुहूर्त एभली मुहूर्त आम समस्त आज ये पहुँची आज सेमिकंडक्टर भाया जोटा कि सबुठारु कहा पाखे सेमिकंडक्टर अच्छी प्रोजेक्ट अच्छी से सबुठारु चालाक देश एवं धनी देश एवं शक्तिशाली राष्ट्र आउ आज ओडिशा को ये सुजोग जो आज मोदी जी कर इंडिया जिते प्रोजेक्ट भितर आज ओडिशा स्वतंत्र जो ध्यान दौरान निश्चित भाव में आमको बढ़ा आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी आज आसीपारे ना एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम थी हेतु प्रधानमंत्री सहित किंतु से आमको वार्ता देले एवं से वार्ता आमको ये पाखे मत भी रखिले
रेडी अच्छी ओडिशा को बिना शर्त समस्त प्रोजेक्ट को देवाई आउ काम को आग को बढ़ाई आज आम पाखे से वीडियो वार्ता आम पाखे रखिले मुझे धन्यवाद देवी से ओडिशा को एभली भाव में भल पाऊँ एवं ओडिशा शिल्प क्षेत्र में आईटी सेक्टर में आज आमको आगे जावाई से निजे थी आमको डबल इंजिन सरकार जहाँ आमको देवा कथा टिके अधिक आमको सब दौथा यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मुझे देश के एकमात्र मुख्यमंत्री के नाते मैं नई दिल्ली स्थित जहाँ मैंने अभी उड़िया से बोल रहे थे यशोभूमि में आयोजित प्रतिष्ठित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम मुझे सम्मिलित होने का बहुत बड़ा अवसर मिला था और हमको रोड शो करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा अवसर हमको दिए थे। इस अवसर पर मेरी मुलाकात हुई थी सेमीकंडक्टर उद्योग की 16 अग्रणी कंपनीज के लीडर के साथ सार्थक चर्चा हुआ था, रोड शो हुआ था और 3 प्रतिष्ठित कंपनी के साथ 5,750 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण एमओयू पर साइन हुआ, जिससे ओडिशा में नई निवेश, रोजगार सृजन एवं तकनीकी प्रगति को बल मिलेगा। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आज देश में जो विकास हो रहा है इसमें एक ही बात कॉमन है, हर प्रोजेक्ट पहले से ज्यादा गति से हो रहा है और विश्व स्तरीय भी आज हमारा उड़ीसा में हो रहा है। अब हमारा देश विकसित राष्ट्र के समकक्ष होने जा रहा है। इस बड़ी सोच के पीछे अगर कोई है तो वो है हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज आप देश की अर्थनीति देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए या टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में भारत अब बहुत आगे जा रहा है। इस अर्थनीति और सप्लाई चेन में अभी यह हलचल मची है, इसलिए प्रधानमंत्री जी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। डिक्सेम के इस बजट को प्रधानमंत्री जी अगस्त के महीने में केंद्र कैबिनेट में अनुमोदन दिए थे। आज आप देखिए 2-3 महीने में आज इसका ग्राउंड ब्रेकिंग आज वहाँ हमारा इनको वैली 2 में आज हो रहा है। ये है नई भारत के काम करने का स्पीड और स्केल। प्रधानमंत्री जी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है और इसमें ओडिशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले ही ओडिशा में 620 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बन रहा है और डिक्सेम आज इस यूनिट में 2000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे 1000 नियुक्ति के अवसर भी मिलेंगे। इस यूनिट में जो प्रोजेक्ट बनेगा वो मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे, सोलर पावर आदि आधुनिक क्षेत्रों में मौजूद होगा। खुशी की बात है डिक्सेम लिमिटेड आईआईटी भुवनेश्वर में 64 करोड़ रुपए के निवेश में एक रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बन रहा है। हमारा आईटी मिनिस्टर मुकेश जी भी वो बात आपके सामने रखे थे। इससे सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी में नई रिसर्च, डिजाइन और इनोवेशन होगा जो भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में सहायक होगा। इस पार्टनरशिप के लिए मैं डिक्सेम के मैनेजिंग डायरेक्टर और आईआईटी डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये कहने में बहुत प्रसन्नता हो रही है हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उनके एमपी लैंड फंड से 5 करोड़ रुपए विनियोग करके
आईटी भुवनेश्वर में 1 नंबर सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्थापन करने के लिए अनुमोदन दिए। इसलिए मैं अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। रेलवे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, ओडिशा के हर विकास में उनका साथ और हृदय दिखाई देता है। इसी आधार पर वो भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे पास भी वो बात को रखें। मैं श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करूंगा कि आईटी भुवनेश्वर में एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हब की स्थापना करें, जिसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप प्रदर्शित हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आईआईटी भुवनेश्वर इस प्रोजेक्ट के लिए एक सही और आदर्श निश्चित रूप से एक पार्टनर अगले दिन में बनेगा। ओडिशा तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। 2036 में समृद्ध ओडिशा गठन और 2036 तक विकसित भारत गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ओडिशा पूरी तरह तैयार है। आज हमारी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आईडीएस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। ओडिशा में आज 500 आईटी कंपनी 60,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों को नियुक्ति दिया है। ओडिशा में 1500 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियों और 50 से ज़्यादा इंक्यूबेटर है। ये संख्या प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु के बाद आज ओडिशा भारत की नई इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कैपिटल बनने जा रहा है। इसके लिए हमारा हायर एजुकेशन इकोसिस्टम की एक बड़ी भूमिका अगले दिन में होगी। ओडिशा में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विकास के लिए हम ओडिशा सेमीकंडक्टर पॉलिसी को परिवर्तन करके इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाइए। ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी में एक है। ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी के साथ 50% कैपिटल सब्सिडी के साथ बहुत सारे नई बनिंग किट्स उपलब्ध है। हम नई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी घोषणा किए हैं, जो भारत सरकार के प्रोत्साहन के ऊपर बहुत सारे अतिरिक्त प्रोत्साहन भी वो दे रहे हैं। अभी उड़ीसा में हमें नई एआई पॉलिसी लाए हैं। इसके साथ ओडिशा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और फिनटेक इंडस्ट्री बनाने के लिए हम बहुत जल्द एक नई पॉलिसी ला रहे हैं। फिनटेक और इंसर्ट के क्षेत्रों में हमारे बच्चों के स्किलिंग के लिए हम सिंगापुर के GFTN के साथ पार्टनरशिप भी किए हैं। आज ओडिशा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेशकों के लिए एक नेचुरल डेस्टिनेशन बन गया है। वहाँ कंपनियों का ऑपरेशनल कॉस्ट किसी भी राज्य से 30 से 40% निश्चित रूप से कम होगा। 50 एकड़ की जमीन पर जहाँ आधुनिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी है, इसके साथ पुरी में एक केबल लर्निंग फैसिलिटी भी बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हर निवेश के लिए ओडिशा सबसे अच्छी और सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। आगे चल के ये पार्टनरशिप समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत की निश्चित रूप से अगला दिन में आधार बनेगी। माननीय मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत टीम से सिर्फ के अद्भुत अभियान के दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो हमारे देश के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। हमारी सरकार मोदी जी के इसी मार्ग को लेकर आगे बढ़ रहा है। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के अवसर पर माननीय मोदी जी दुनिया भर के उद्योगपति को जो कॉल दिए थे, मैं फिर से उसको दोहरा के मेरा निश्चित रूप से मेरा अभिभाषण को मैं समाप्त करूँगा। माननीय मोदी जी आम पाखे जितेबले जनवरी 28 और 29 तारीख उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव
2025 परिप्रेक्षी ओडिशा आसी भुवनेश्वर जनता मैदान रे समस्त केवल भारत वर्षर नुह विश्वर जो निवेशकारी माने जो पुंजी निवेशकारी माने जो शिल्पपति माने एवं तांकर सीओ एवं चेयरमैन माने आसीथिले सेमानंतर सहित आलोचना कला बेले से कहिथिले जे ओडिशा एक सर्वश्रेष्ठ संभावनार राज्य एवं भारत जेतरे विकसित होगा जीव ओडिशा ग्रोथ इंजिन होगा जाऊँ आउ से समस्त को कही जे आपण माने ये संभावना राज्य ओडिशा को आपण माने फोकस करंतु एवं एई इन्वेस्टमेंट करंतु आउ से तांकर जो कथा कही कम इन्वेस्ट इन ओडिशा क्योंकि यही समय है सही समय है। सबको मेरा धन्यवाद। जय हिंद।